For the past 2 days, पहले आपने जो है अरसलान के साथ सेशन किया and you got to know how do you make your presence as a student and then उसके बाद आपने शफीका इकबाल को देखा. She told about her journey कि गूगल उन्होंने किस तरह से ज्वाइन किया and what was the key role. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जीपीए होल्डर हो तो आप गूगल ज्वाइन कर सकते हैं. No, she was from middle class family but at the end of the day आपकी मेहनत काम आती है. So I would like to welcome Ikra Khatak, Mohammad Kamal, Fatma Yusuf and Saad Hassan. Glad to see you all here after a long time. Assalamualaikum everyone, how are you doing? It's good to be here, Fawad. Thank you so much for inviting us. It's great to be here. Assalamualaikum everyone. And Assalamualaikum Fawad, how are you doing? Walaikum assalam, alhamdulillah, I'm good. I hope you are doing good. Doing okay, alhamdulillah. Assalamualaikum everyone, I hope you guys are doing well. Kamal here, by the way, and it's so nice to see you guys again, once again. And hello Ikra, hello Fatma, hello Saad. Really nice really nice to start the session with you guys. So looking forward to it. Yeah, definitely. So hello everyone, very nice to see GDSC together and GD Live Pakistan representing ourselves on this large stage for this panel discussion on the agenda is like reshaping connections, right? Yeah, it is. Yeah. So let's start some basic discussion. I would say that would be what is the GDSC program in your perspective? If I ask, starting from you, Ikra, you spent 1 year being a GDSC lead. What did you learn, and how do you see this program? You know, Yeah. First of all, thank you for inviting me here, and it's great to see all these people. And I am, as our agenda, reshaping connections. I think we'll be reshaping connections here again. Apart from that, let's discuss GDSC, Google Developer Student Clubs. And as Fawad asked me right now, how I feel about it. I feel like I have been in a family for the last year, and I feel like now this whole journey that has been a year long, and meeting all these new people and all these like-minded people that make you feel like a family is amazing. It's like you never want to leave, and it's it's heartbreaking when you when you have to leave and it's and you have to give it to someone else who doesn't he doesn't even know where you started from, and it's it's like leaving something, a part of you behind. So apart from leaving, it's growing and it's learning, and that in it itself is something that has to be wholesome. So I'd say that's what I think about GDSC. so yeah, over to you, Fatma. What's your opinion on that? Almost, whatever Ikra mentioned, I would add to it a lot to it. Like GDSC is like a whole family, a fam, I would say. As Ikra said, it's a family which I didn't want to leave and hand over to someone who didn't even know, who didn't even realize what it took, to be there. And yeah, but still GDSC to everyone out here who is listening to us, GDSC is you guys know now, it's like Google Developer Student Clubs, and it's also like a program. It's literally at the first it was like a program to me, which gave me a platform to showcase what I had in me and what I could do for the community, for my community in especially, and then looking for the broader region and our entire Pakistani Awam. So like yes, मैंने जो था like I started from my campus and my department at first, and then this program actually started to go far and wide. Obviously मेरे सिर्फ एक की contribution के through नहीं, but with everyone's contribution, Fawad, Ikra, Kumail, Saad, everyone, every other lead, Ahmed, everyone out here. I would be short in names, but our leads were like a family of 43 leads, and
we contributed a lot to each other, and we became a family. Now we name ourselves as family. So like, yeah, that's what I'll say about GDSC. Yeah, what do you, Kamal? What's your point All of right. view on that? So I hope you guys can see me. I don't know why my camera wasn't working previously. So she's all about Google Developer Student Club, right? And it has always been. I mean, it has not only helped me grow as a person, it has allowed me to network more, and it has made me feel new about new adventures, widen up my vision, and this is something that really counts when you are trying to join a community. And I think the most important part is that this especially the GDSC program is something different from any other community with regards to the mentor friends you get after your graduate program. Some this is something that nobody, I think, would regret even if they become a part of it for a short time, and that's something that you truly remember it for the rest of your life. Yeah, thank you, Kamal. Saad, over to you. Yeah, so for me, apart from being in a family, the most important thing that GDSC has given to me is that an impact that I can create, or I have created using the boot camps. You already know about that, the introduction of boot camps that I introduced. So it has enabled me and allowed me to taught more than 2,000 students across Pakistan from different cities, help them in their projects and just be there for them whenever they need. So the most important thing that I get from being a GDSC lead is that the praise you get from the people you help, and that makes you grow as a person itself and also as a leader in itself. So the both edges are meet. Okay, that's great. So मैं अगर to be honest बताऊँ ना तो ये जो प्रोग्राम है गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स का, तो इस तरह की फैमिली ना, इस अब लेट्स सपोज अगर मैं कल को यूनिवर्सिटी में ना पढ़ रहा होता तो आई वुडंट हैव कनेक्टेड विद अहमद, इकरा, फातिमा, कमाल, साद, ये जितने भी लोग हैं. तो ये जो प्रोग्राम होता है ना, मैं हमेशा नेटवर्क की बात करता हूँ कि आपका नेटवर्क आपके लिए, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क. जिस तरह अभी नायाब रोक्स का जो भी सेशन हुआ था उसमें भी बात हो रही थी. तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आपको नेटवर्क एटलीस्ट देता है. कुछ भी ना देता हो ना तो नेटवर्क आपको मिल जाता है, और उस नेटवर्क में फिर आप जितना सीखते हैं, जितना आप आगे लोगों से मिलते हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो उसके अलावा जो है Exactly, Fawad. I couldn't agree more. टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी काम करते हैं. इस तरह नहीं है, मतलब हमने GDSC लीड हमने ज्वाइन तो कर लिया, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि पहले हम कोई टेक्नोलॉजी सीखें, उसके बाद दूसरों को भी सिखाएं. तो हमारी मेन कोशिश हमेशा यही रही है. और मैं टू बी ऑनेस्ट, ये वो बंदे हैं जिनको जो मैंने इनको इनवाइट किया, स्पेशली ये वो लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव थे. आई टॉक अबाउट फातिमा, इफ आई टॉक अबाउट इकरा, कुमैल भाई हो गए, साद हो गए. तो इवन साद को तो मैं स्पेशली कहूँगा, साद ही इज लाइक द मशीन लर्निंग गुरु. आपका मशीन लर्निंग का कोई भी काम हो, जस्ट पिंग हिम एंड ही कैन हेल्प यू आउट. तो देखिए, आई थिंक वो 4th 5th सेमेस्टर में हैं करेंटली, एंड इनके अपने स्टूडेंट्स हैं. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी अर्ली स्टेज में आप जो है बेसिकली किन किन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं. मैं अपनी बात करूं तो मुझे फ्लटर का अलिफ बे भी नहीं पता था बिफोर गोइंग टू बिकम गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स लीड. जब मैंने सर्च किया, मुझे प्रोग्राम मिला, आई अप्लाइड, तब मुझे पता लगा अच्छा फ्लटर कोई चीज़ है जो कि एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ में हमें ये नहीं सिखाया जाता. तो अगला सवाल ये है, स्टार्टिंग फ्रॉम यू इकरा, कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू अपडेट देमसेल्फ टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. That is a great question, Fawad. I'd say that if you're not in sync with the modern technologies, then you're so far behind you can't even imagine. Because in this field, that is software engineering, computer science, and all that, there is so much more to learn that you don't even know about. And it's like
a whole vast ocean of technologies and things that you need to have in your information and in your knowledge. So if you have to be learning something, if you are learning something, something that is in accordance with your interest, then you have to go for the main technologies that are there for modern, that are here at this time. Because I see some people that who go for things like C++ and start from there. But I think if you want to go into web, you should start from web. If your interest lies in web, then you shouldn't be starting from C++. You should be starting from web, and you should be giving all your time and your effort to that particular field. And apart from web, if you're talking about Flutter, like you talk about Flutter, Fawad, I'm myself a Flutter developer, and I think this technology is rising so far above that we don't even know the scope of it right now. But in the near future, I think this is going to be a boom. And apart from Flutter, there are so many other technologies that we have to be aware of. Like Saad Hassan is, AI ML enthusiast, and Fatma and Kamel. I'm sure they're doing so many technical things right now that are in accordance with their interest, and also modernly beautiful. Yeah, Fatma, up to you. Okay, so yeah, पहली बात तो I would just say कि back in like my first year जब fresher थी in university, I used to zone out जब teachers new technologies की बात करते थे, like literally. Not gonna lie at this point, फवाद वाली बात कि like before joining this program, I didn't know even Flutter exist करती है कोई चीज़, या कोई technology, कोई TensorFlow जैसी technology exist करती है. And now rolling fast forward to 3 years now, जब मैं मेरा FYP completely dependent है AI ML, artificial intelligence and machine learning, and Saad Hassan, who is I would say he's a technical guy and he's helping a lot, in my honestly, like in my FYP, like starting से he has guided me कि कहाँ कैसी कौन सी technology, कौन से topic हैं, मतलब like as a co-supervisor he has been monitoring us and mentoring us as well. So like I would say कि पहले ना मुझे Flutter का पता था, ना ही मुझे कोई Android के resources या Google कोई resources provide करता है. तो like अगर focus obviously not really Google technologies but all the technologies, लेकिन Google obviously is like booming, as Ikra mentioned कि हमें it's really necessary कि हमें if you are a technical banda, तो you have to be up to date with what is going on in the trend, right? So you will be left behind अगर आप लोगों को interview questions आ जाएं या आपको final year project करना हो, तो it's really important कि आपको at least technologies का पता हो, not really hands-on experience हो उसमें, but it's really important कि आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत, उनकी community जैसे GDG groups हो गए, उनके GDEs हो गए, तो उनके networking के through, LinkedIn के through, उनके through opinion लेना, क्योंकि it's a सवाल of your career, like question है आपके लिए career के लिए कि आप कौन सी technology को focus करके आगे बढ़ेंगे और आपको jobs मिलेंगी. So yeah, it really is important, and importance तो आपको मतलब like overall बातों से पता चल गया होगा, as different leads would be sharing their opinions as well. But to me, it's really important कि आप as a student zone out होने के लिए ना होने के लिए, एक embarrassed student ना होने के लिए ज़रूरी है कि you should be up to date with the information, with the technologies जो new आ रही हैं. Just know them at least कि they do exist and what work they do. That's it. आगे पढ़ना उनको और discover करना is your responsibility, and time to time आप सीख लोगे. लेकिन it's really important to have a knowledge about them and to start working and start looking for the community जो एक specific technology पे काम करती है, and that can really help you at times, in your semester projects हो गए या final year projects हो गए, because उनके बगैर आप खुद कुछ भी अकेले इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते, honestly. So like just keep on updating yourself with the technology. Even आप सिर्फ टेक ही नहीं हो, आप किसी और फील्ड में हो, किसी और इंजीनियरिंग के फील्ड में, या इवन मेडिकल स्टूडेंट्स भी उनको ज़रूरत होती है
in technologies. I remember मेरी chemical engineering की एक friend है, she has been working on Flutter, and I'm so surprised मुझे, though I'm not into Flutter, I'm into web development and Android development, and also like currently I'm working in AI ML, so मुझे बहुत like अच्छा लग रहा है like working in there. But like talking about Flutter, I'm not into Flutter right now, but I'll be trying to execute some of the projects into it and start learning. But like it's a booming technology, so I have to look into it. But yeah, I mean इनको देखना ज़रूरी है, like in short, in summarized manner. या एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह है। अभी यहाँ पे किसी ने आई थिंक तहरीम में कुछ पूछा है कि आई मीन व्हाट यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट के किसी ने स्टार्ट किया था, आपने लीड लिया एंड इस तरह ये लेगेसी चलती रहेगी। एग्जैक्टली वो तो है, लेकिन आप ये भी एटलीस्ट उस चीज़ को भी देखें कि जो बंदा लीड ले रहा है, अब लेट्स सपोज वी वर द वन जो कि हम जो है थोड़ा सा ज़्यादा पैशनेट इस चीज़ में थे कि यार चलो हमें तो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो जब हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो उसको हम कंटिन्यू क्या ना करें, हम उसको आगे लोगों तक भी पहुंचाएं। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें हमने लास्ट ईयर जितने सेशंस करवाए हैं ऑनलाइन, तो आई थिंक वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम लोगों को एंटरटेन करें कि यार अच्छा लेट्स सपोज किसी ने AR VR सीखना है, वी आर हियर फॉर यू, ठीक है। आपने जो है लेट्स सपोज क्लाउड पे काम करना है, वी आर हियर फॉर यू, हम आपके लिए भी स्पीकर अरेंज करें, हम खुद भी सीख रहे हैं, आप लोगों को भी सिखाएंगे। सो दैट्स बेसिकली कम्युनिटीज का फायदा यही होता है। और मैं इस पे कोमैल भाई का भी राय जानना चाहूंगा कि कोमैल भाई के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज के ऊपर। श्योर। सो मेरा काफ़ी ब्रॉड किस्म का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको सारे एस्पेक्ट्स बताऊंगा, मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं और फिर आप जब मतलब टेक्नोलॉजी को सीखते स्केल करते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके टेक्नोलॉजी को बहुत ऊपर लेवल तक देखा है। तो मतलब अब अगर मैं जब तक सीनियर डेवलपर्स को बिल्कुल तंग करके उनसे चीज़ें ना एक्सट्रैक्ट कर सकूं, मुझे चैन नहीं आता। तो मेरा क्योंकि एक तो शौक था इस फील्ड का, फिर ये है कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मुझे लगता है कि ही कैन मेंटर मी इन अ पर्टिकुलर डोमेन, तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा कि यार मुझे बताओ अच्छा ये क्या है, कैसे काम करेंगे। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसका एक बड़ा शॉर्ट आंसर अगर मैं दूँ तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हर टेक्नोलॉजी का अपडेट होना, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। मिसाल देता हूँ, आज से 10 साल पहले की अगर आप बात करें तो PHP बहुत बूम कर रही थी, नई नई टेक्नोलॉजी आई, नई नई वेबसाइट्स लोगों ने बनाना शुरू की, बूम आया एकदम से, गूगल फेसबुक सबका। तो PHP सबसे ज़्यादा इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी थी, जिसको PHP डेवलपर मिल जाए तो लिटरली आपको वो उस दौर में $10,000 पर मंथ पे हायर करेंगे कि जी हमें PHP डेवलपर चाहिए। आज PHP की वो बात ही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि PHP अब आउटडेट हो गई है, PHP अभी भी यूज़ होती है, लेकिन अब वो डिमांड नहीं रही जैसा PHP की थी कि आपको वो लिटरली $10,000 पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मिसाल देता हूँ कि अब बंदा क्या अच्छा यार आज के दौर में भी ऐसी कोई जॉब है जो लिटरली महीने के $10,000 भी पे करती हो, तो यस है। आप किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट हो आप, वो तो एक अलग बात है ना कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन अगर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी लेट्स से ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन के डेवलपर्स जैसे दुनिया में बहुत कम है। मैं खुद ब्लॉकचेन पे काम कर रहा हूँ आजकल, तो आई नो के मार्केट में एक अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर की डिमांड कितनी ग्रोइंग है। तो मतलब आज से 10 साल पहले जो PHP की डिमांड थी वो आज ब्लॉकचेन की है। अब जो बंदा अभी तक PHP के साथ स्टिक कर रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल पे है, लेकिन जिस बंदे ने PHP से फॉरन किसी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी पे स्विच कर दिया, लेट्स से ब्लॉकचेन पे, तो अब वो तेजी से मार्केट में है, वो इन डिमांड है और वो उसके साथ साथ ग्रो कर रहा है, तो उसका ग्रोथ पोटेंशियल नहीं रोक रहा। तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजीज का ये प्रॉब्लम है कि वो डे वीक इन वीक आउट रोज चेंज हो रही है और आपको उसके साथ साथ चलना है। अगर आप आपको जबरदस्ती बिठा लेंगे कहें आज जी मैं तो आज तक असेंबली लैंग्वेज पे ही काम करूंगा क्योंकि मैं असेंबली लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूँ, तो अब कहने का मकसद ये है कि असेंबली लैंग्वेज स्टिल यूज होती है, दैट डजंट मीन कि वो चली गई है। लेकिन अब असेंबली लैंग्वेज के डेवलपर्स कितने हैं दुनिया में, जॉब्स कितनी आती हैं, मतलब उस तरह से वो नहीं रही जिस तरह से आज से 1980s 1990s में थी। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखना इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब मिसाल देता हूँ, जैसे नॉर्मल क्लाउड था कि बस लोग ना बस होस्टिंग लेते थे किसी प्रोवाइडर से और बस वहाँ पे ना HTML CSS फाइल्स अपलोड कर दी या वर्डप्रेस फाइल्स अपलोड कर दी। अब कॉन्सेप्ट बदल गया है, अब लोग सर्वरलेस की तरफ आ गए हैं कि अब सर्वर वाला सिस्टम ही नहीं है। तो मतलब इन इटसेल्फ क्लाउड जिस पे आप चीज़ें होस्ट करें वो कितना इवॉल्व कर गया। और आप बिलीव करो अगर आज आप में से कोई भी क्लाउड सीखना चाहता है, जैसे लेट्स से AWS, Azure, माइक्रोसॉफ्ट का है और फिर GCP, ये तो इस टाइम दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। और आप बिलीव करें कि आपने साल पहले जो क्लाउड सीखा और आप साल बाद वैसे बस मतलब उस पर काम करना छोड़ दें, साल बाद आप क्लाउड दोबारा ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो तो क्लाउड ही जो मैंने देखा था वो UI से लेके सर्विसेज से लेके सारा कुछ ही चेंज हो गया।
तो टेक्नोलॉजीज इन इटसेल्फ इतनी तेज़ी से रोल आउट कर रही हैं कि उसके साथ कीप अप करना भी आसान नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो आपने उसके साथ साथ अपने आप को बकअप करना है, कोप अप करना है और सीखते रहना है, देखते रहना है कि नई टेक्नोलॉजी ये आ रही है, इसका क्या मार्केट में स्कोप बन सकता है, ये चीज़ इस तरह है तो इसका क्या स्कोप बनेगा। तो ये चीज़ें आएंगी, एक दूसरे को रिप्लेस करती रहेंगी, बेहतर से बेहतर बनती रहेंगी क्योंकि लोग कर रहे हैं ये काम। तो आई थिंक ये मेरा पर्सपेक्टिव था सारा के इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के बारे में। थैंक यू। एग्जैक्टली कमाल इसी तरह है। अब मैं अगर बात करूँ ना, जिस तरह कमाल भाई बात कर रहे थे कि आपको अप टू डेट करना पड़ता है खुद को, तो हमारे साथ एक टीचर थे जब मैं डिज़ाइनिंग सीख रहा था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरा पैशन था। 2016 में मैंने स्टार्ट किया। तो हमारे साथ एक टीचर थे किफ़ायत सर उनका नाम था। तो वो जो है कस्टम कोडिंग करते थे उस टाइम, PHP वगैरह में और सारी चीज़ें ना उस टाइम पे वो काम कर रहे थे। तो एकदम से बूटस्ट्रैप ने जंप किया, वो ड्रैग एंड ड्रॉप पे चला गया कि ड्रैग एंड ड्रॉप पे वेबसाइट बनती है, ठीक है। तो वो एकदम से घबरा गए कि यार ये क्या होगा, ये तो आगे फ्यूचर टाइम में सारा कुछ, इवन वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस जिस तरह है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके बस वेबसाइट बन जाएगी, तो ये तो मेरा कैरियर खत्म हो गया। मसला ये था कि उन्होंने अपनी कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था कि लेट्स सपोज आज से मैं इस टेक्नोलॉजी पे काम करूं, 5 साल बाद या 10 साल बाद मुझे खामखा दूसरी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारी उम्र जो है सिर्फ यही चलता रहेगा, नो। इवन दो मार्केट में है, मैं खुद मार्केट में काम करता हूँ, इवन दो लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर, बट लोग ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, वर्डप्रेस में बना दो, ये कर दो। ई कॉमर्स वेबसाइट आपकी मोस्टली वर्डप्रेस में ही लोग बनाते हैं। तो सारा का सारा जो है फोकस उस साइड पे जा रहा है। तो इवन जब मैंने डिजाइनिंग स्टार्ट की, मैंने बीच में ऑलमोस्ट कोई 5-6 महीने का ब्रेक लिया। एंड जब मैं अगले दिन सॉफ्टवेयर पे बैठा तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा मैं बिगिनर हूँ और मुझे फोटोशॉप का अलिफ बे भी नहीं पता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। एंड उसके बाद जब कंसिस्टेंसी आने लगी, मैंने चीज़ें ने की, यार अच्छा ये करना है, इस तरह से करना है, मैंने डिज़ाइन ट्रेंड को फॉलो करना शुरू किया। तो 1 साल में मेरा काम 20% से 50% पे चला गया, क्वालिटी लेवल यहाँ तक पहुँच गया 1 साल में, रिसर्च और ये चीज़ें। तो बात वही पे आ जाती है कि आपने ना, मतलब ठीक है, मैं इस कम्युनिटीज़ की बात इसलिए करता हूँ कि कम्युनिटीज़ में लेट्स सपोज कल को मुझे कोई मसला आता है, लेट्स सपोज मशीन लर्निंग में, मैं सीधा साद हसन को पिंग करूंगा कि यार साद ये मसला है, मेरे पास बैकअप ऑप्शन है, ठीक है। कोई और मसला आएगा, फ्लटर में मसला आएगा, मैं इवन अहमद को मैसेज कर सकता हूँ, यार फ्लटर में मुझे ये मसला आ रहा है तो आप जो है मुझे यहाँ पे हेल्प आउट कर दो, तो मैं उससे भी हेल्प ले सकता हूँ। तो इट्स लाइक एग्जैक्टली ये चीज़ है कि आपके पीयर्स आपके पास मौजूद हैं। पीयर टू पीयर लर्निंग काफ़ी अच्छी लर्निंग होती है, वो अपने पीयर से सीखते हैं ना, तो वो सबसे अच्छा होता है। तो साथ आपका क्या पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग कि टेक्नोलॉजी भी अप टू डेट क्यों होना चाहिए और कहाँ से कहाँ तक सोचना चाहिए? अब मैं इवन छोटी एग्जांपल एक और भी कोट करता हूँ यहाँ पे। अब चूंकि मेटावर्स आ रहा है ना, आप लेट्स सपोज आप में से काफ़ी लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। 5 से 10 साल बाद मैं ये देख रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो जाएगी, बिकॉज आप घर से बैठ के आपने जो है गैजेट पहन लिए एंड आप जो है दुनिया के किसी भी कोने में घूम रहे होंगे और आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप शॉपिंग भी वहीं से कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू वहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। तो ये इसी तरह है। तो मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ राहिल, दैट्स अ थिंग, वही बात है। तो मैं आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि यार मेटावर्स आ रहा है तो क्या होगा अगले 5-10 सालों में, डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्या होगा, इसी तरह की चीजें हैं। तो यस साथ प्लीज एनलाइटन अस। यार इसमें ना एक्चुअली दो चीज़ें हैं, एक तो पर्सपेक्टिव है जॉब का और दूसरा पर्सपेक्टिव अगर आपने कोई स्टार्टअप करना है या आपने बिजनेस करना है या आप ऐसे बिजनेस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो। तो अगर तो आप जॉब पर्सपेक्टिव से देखो ना तो आपको फॉलो करना चाहिए ट्रेंड को। ट्रेंड्स में आपको पता चल जाता है ऑटोमेटिकली, जस्ट स्क्रॉल योर लिंक्डइन फीड और जस्ट स्क्रॉल एनी गिटहब, एक्सप्लोर रिपोजिटरीज और टॉप रिपोजिटरीज को देखो और आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड्स क्या हैं, ठीक है। लाइक वेब में ट्रेंड आपके पास रिएक्ट है, ठीक है। बैकएंड में आपके पास ट्रेंड गोलैंग है इस वक्त सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो रस्ट है आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है बैकएंड के लिए, ठीक है। इसी तरह डेटा साइंस वाली साइड पे, तो ये ट्रेंड्स हैं जॉब सेक्टर के लिए। और अगर आप एक स्टार्टअप सेक्टर में जाना चाहते हो, लाइक यू वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप स्पेसिफिकली किसी डोमेन में, तो आपको उसके डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लाइक मोर देन एनीवन एल्स, ताकि आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके ना उसका फौरी सोल्यूशन निकाल के उसको मार्केट में सही तरह मैप कर सको। बिकॉज स्टार्टअप केस में या बिजनेस केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी प्रोडक्ट की टाइमिंग होती है कि कब आप उस चीज़ को लॉन्च कर रहे हो। सो इन दोनों के पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं। बाकी जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी सीखने का, तो वो सारा कुछ जो कुमेल ने बता दिया बिल्कुल सही बताया कि आज से 10 साल पहले जिस चीज़ का आपको $10,000 मिलता था आज वो नहीं मिलता, और ये रियलिटी आज से 10 साल बाद जिसका आज मिलता है उसका भी नहीं मिला करेगा। लाइक
आपके पास रिएक्ट के बड़े सारे रिप्लेसमेंट्स आ चुके हैं, आपके पास नेक्स्ट आ गया, आपके पास अब और सारे बड़े सारे फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, लाइक हो सकता है फ्यूचर में उस चीज़ को भी रिप्लेस कर दें। इसी तरह आपके पास आगे जाकर रोबोटिक्स आ जाएगी, तो मोस्टली जो काम है जो कि ह्यूमन इंटरलूप से होते हैं उस वक्त सारे ख़त्म हो जाएंगे रोबोट्स के ऊपर। पाकिस्तान अभी उस चीज़ से बहुत पीछे है, लाइक 15-20 साल पीछे है वर्ल्ड से, लेकिन फिर भी एक दफ़ा ऐसा चेंज आएगा 2035 और 2040 के बाद कि आपको हर चीज़ में दोबारा से सोचनी पड़ेगी कि हम जो कर रहे हैं। और जो सच्ची बात है ये है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो अगले 5 साल में डेप्लीकेट हो जाएगा, टोटली डेप्लीकेट। आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि आपको ये अगर आता तो क्यों आता है, लाइक लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेन चीज़ जो सबसे बड़ा पे एक एज है एज अ CS स्टूडेंट वो यही है कि आपकी फील्ड कभी ख़त्म नहीं होगी, आपकी फील्ड में चीज़ें नई आती रहेंगी और आपको नया करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो दुनिया आपको फिर चेंज कर देगी और फिर आप देखते रह जाओगे कि मैं यहाँ रह गया और दुनिया कहाँ चलेगी ना। तो ये एक बड़ा हम सब के लिए भी है और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी है कि आपने अपने आप को इवॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यही इंसान का जो है ना एवोल्यूशन रहा है आज तक कि हमेशा हमने अपने आप को पिछली चीज़ से नेक्स्ट चीज़ बेटर बना के दी है। ठीक है, तो लाइक ये एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह है साथ। इवन काफ़ी लोग ये सोचते हैं ना कि यार हमने तो चलो स्किल सीख ली है, फ्रीलांसिंग की तरफ मूव करते हैं, एंड वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि यार हमारा स्टार्ट और एंड जो है बस फ्रीलांसिंग है, बस फ्रीलांसिंग है तो हम है, बस वो उसी पे स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि फ्रीलांसिंग इज जस्ट अ स्टार्ट। आपने उसको स्टार्टअप में किस तरह कन्वर्ट करना है, आपने उसको एक प्रॉपर टीम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये फिर आपके ऊपर डिपेंड है। ये आपकी लीडरशिप स्किल्स हैं, यहाँ पे आपकी लीडरशिप स्किल्स काम आती हैं। और ये लीडरशिप स्किल्स कहाँ से आती हैं, जब आप यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं, इवेंट्स वगैरह कराते हैं, आप इस तरह की कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, तो आपकी लीडर स्किल्स हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती हैं। ठीक है, इसी तरह होता है। तो मतलब आपके पास यही एज है ना, एक एज अ CS स्टूडेंट या एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग से हो, आप सॉफ्टवेयर से हो या किसी से भी हो, आपके पास मल्टीपल डोमेन्स में काम करने का एज रहता है हमेशा। आप स्टार्ट करो जॉब से, लाइक जो आपकी इनिशियल अर्निंग्स है, 5 साल आप काम करो, आपको इंडस्ट्री का पता चल जाता है, आपको काम की वैल्यू पता चल जाती है, यू कैन स्टार्ट योर ओन वर्क, मतलब ये सबसे बड़ा एज होता है। फिर आप फ्रीलांसिंग साथ साथ पैरेलल में कर सकते हो। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी के दौरान फ्रीलांसिंग कर सकते हो और उसके बाद फिर ये है कि यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस और लास्ट में जाके यू कैन टीच, यू कैन बिकम अ प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। लाइक ये पूरा एक लूप है जो पूरी ज़िंदगी का इंसान को ना मतलब एक एज मिलता है एज अ CS स्टूडेंट। ये बाकी फील्ड्स में इस तरह से नहीं होता। वहाँ में हमने देखा होगा कि जो एक बंदा 25 साल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही रहेगा एंड तक, ही कांट चेंज, वो मैकेनिकल में नहीं जा सकता। लेकिन आप फ्लटर से रिएक्ट में जा सकते हो, आप रिएक्ट से मशीन लर्निंग में आ सकते हो, मशीन लर्निंग से ब्लॉकचेन में जा सकते हो, ब्लॉकचेन से आप साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर बन सकते हो जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो लाइक ये एक बड़ा एज है हर, तो वो आपके सीखने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह सीखते हो। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, अब मैं मैंने साथ जिस तरह के बात साथ की, हाँ सॉरी फॉर जरूर कमाल, जरूर। मैं साथ की बात से थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँगा एक थोड़ा सा टॉपिक। वो ये है कि मतलब इट्स पर्टिकुलरली फॉर परसुइंग, इफ यू आर परसुइंग CS और SE या रेलेवेंट फील्ड्स में कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आ जाती है। मेरे लिए तो BS लेवल पे इससे बेहतर कोई डिग्री ही नहीं है। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं वो कर रहा हूँ, बट मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा जनरल है इसको लेके। लेकिन इतना उसका फ़ायदा ये है कि इस फील्ड से ना आप किसी भी फील्ड में बहुत इजीली पिवट कर सकते हो, आप बहुत इजीली मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ठीक है, MBBS नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा आप हर तरह की चीज़ में जा सकते हो। मार्केटिंग हो, कुछ हो, तो हर चीज़ ना टेक रिलेटेड है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की भी बात करें, देखिए कन्वेंशनल मार्केटिंग उस तरह से रही नहीं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया हर चीज़ है ही सोशल मीडिया। तो अगर फर्स्ट करें आपको टेक पता है, आपको पता है कि अच्छा फेसबुक है, ये कैसे काम कर रही है, तो आप अपनी डोमेन शिफ्ट करें फ्रॉम एब्सोल्यूट सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू अ डिजिटल मार्केटिंग एंथुसियास्ट। यू कैन ऑलवेज डू दैट। ठीक है, यू कैन ऑलवेज बी अ कंसल्टेंट। ठीक है, अब कंसल्टेंट की इतनी डोमेन्स हैं इस फील्ड से। जब आपको टेक का आइडिया होगा ना, तो आप कंसल्टेंसी की भी बड़ी बड़ी डोमेन्स में से लेट्स से 100 हैं तो उसमें से आप 80-90 पे फिट होते होंगे। ठीक है, फिर आप मतलब फर्स्ट करें, आप कहते हैं अच्छा नहीं स्टिल ये मेरी फील्ड मेरी वर्क नहीं करी, आप म्यूजिक में जाना चाह रहे हैं, तो यू स्टिल नो कि आप स्पॉटिफाई आ गया, यूट्यूब, हर चीज़ अभी भी अगर आप म्यूजिक परसू करें, कोई भी फील्ड परसू करना चाहें, वो डायरेक्टली इनडायरेक्ट टेक से कनेक्टेड है। ठीक है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो इस फील्ड का ये फायदा है कि फर्स्ट करें आप BS लेवल पे आए हैं सिर्फ इसको एक्सप्लोर करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप आते ही एक बड़े हाई एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाए, आप बड़े हाई एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर या एंड्रॉइड डेवलपर बन जाए। यू डोंट नीड दैट। ठीक है, ऑल यू नीड इज कि आप इस फील्ड में फोकस्ड रहें और जो आप चीज़ कर रहे हैं ना, आप उस पर फोकस करें। ठीक है, और जो आपको पसंद आ रहा है फिर आप उस पर पिवट करें।
तो ये मैं साथ के साथ ऐड करना चाह रहा था। थैंक यू। एग्जैक्टली अब नो वन बिकम्स अ चीता इन वन नाइट, ये तो गलत बात है ना कि आप कहें कि यार बस एक रात में मैं स्ट्रगल किया और मैं जो है कल को बस गुरु बन गया। नहीं, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, इट्स कंटिन्यूअस स्ट्रगल जब वो आप करते हैं। अब मैंने जिस तरह फ्लटर की बात की ना, तो फ्लटर में वही था कि यार मुझे ब्लॉकचेन का, अब जिस तरह कमाल ने ब्लॉकचेन में अभी काम कर रहे हैं, मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन और फ्लटर में कर लिया। मैंने कहा चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन, अब मेरे माइंड में क्या था, यही था कि यार अभी अगर मैं ब्लॉकचेन में काम करता हूँ, पाकिस्तान में इसका ट्रेंड नहीं है, तो आने वाले 4-5 साल में जब ब्लॉकचेन पाकिस्तान में आएगा तो मेरा 3-4 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। तो दैट्स वेयर आप अपनी वर्थ देखें, फिर आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं कि यार मेरी इतनी वर्थ है इस टाइम पे, फिर आप लगा सकते हैं। काफी लोगों को प्राइसिंग करने में मसला होता है कि यार मैं ये प्रोजेक्ट तो ले रहा हूँ लेकिन मैं कितना चार्ज करूँ, कितना ना करूँ। उस टाइम पे फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा एज होगा। दैट्स व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। जी अहमद, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज। यस, आई वांट ऐड समथिंग अबाउट दिस। और ये था कि कुछ लोगों ने पूछा हुआ था कि आप लोग अपनी नीश को कैसे डिसाइड करें, तो मैं वहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि आप कुछ जब यूनिवर्सिटी में आते हैं, इवन यूनिवर्सिटी से पहले भी आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट ले सकते हैं वेब डेवलपमेंट से, तो आप वेब को देखना स्टार्ट कर दें। डेट्स व्हाट आई डू कि मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में जब आया तो मैंने वेब को देखना शुरू कर दिया, फिर मैंने एंड्रॉयड को देखना शुरू कर दिया, उसके बाद मैंने और ML AI को देखना स्टार्ट कर दिया। एंड देन आई फाउंड माई पैशन जो कि ऐप डेवलपमेंट था, और फिर मैंने देखा एंड्रॉयड में क्या कर सकता हूँ, फ्लटर में क्या कर सकता हूँ, और ऐसा ऐसा आप जैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ 1-2 महीने दें एक टेक्नोलॉजी को, देन यू कैन फाइंड योर नीश। एंड जैसे मैंने अपनी फाइंड किया ऐप डेवलपमेंट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल इसी तरह से है। तो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस, मे बी आई थिंक वी हैव इट। आई थिंक ये साद के लिए है, साद कैन बेटर आंसर ऑन दिस। आई थिंक ही इज वर्किंग विद रोबोटिक्स एंड ऑल दैट, तो वो ज्यादा आंसर कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं इसको आसान कर देता हूँ, जो इसने पूछा है वो ये है कि अब लेट्स सपोज कल को रोबोटिक्स आ जाएगी साथ, ठीक है, तो आपको नहीं लगता ह्यूमन फोर्स कम हो जाएगा, ह्यूमन जॉब्स खत्म होने की तरफ चली जाएंगी? तो आई थिंक ही हैज अ पॉइंट मे बी इन दैट। तो इस क्वेश्चन का आंसर लाया करता है आपके अडॉप्शन कर्व के अंदर। तो अडॉप्शन कर्व क्या होता है, जब भी कोई एक नई चीज़ आती है ना, तो हम ह्यूमंस उसको अडॉप्ट करते हैं। लाइक आज से जब एडिसन ने पहली बार बल्ब बनाया था, हमने उसको अडॉप्ट किया, ठीक है। तो हम उसको अडॉप्ट करते हैं कि हर घर में बल्ब आया, बिजली सबसे पहले बल्ब के थ्रू आई, लाइक DC करंट आया ना। तो उसके बाद निकोला टेस्ला ने AC इंट्रोड्यूस किया, तो हम लोगों ने AC को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये अडॉप्शन कर्व डिपेंड करती है कि कितनी जल्दी मार्केट में टेक्नोलॉजी आती है। अब जहाँ तक बात है ना, ये जो सुपर इंटेलिजेंस की बात है कि AI कैन क्रिएट इन ओन सेल्फ, यानी कि रोबोट अपना खुद का एक चाइल्ड रोबोट क्रिएट कर सके, ये चीज़ बहुत दूर है। आई डोंट थिंक सो कि हम ये अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखेंगे। इसकी वजह ये है कि क्रिटिक्स जो है ना, वो ये कहते हैं कि इट्स बीन ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो गए, 70 साल हो गए हैं, आज तक कोई एग्जैक्टली ट्यूरिंग टेस्ट पास नहीं कर सका। सो पीपल ने दावा, बहुत सारे लोगों ने किया है कि वी हैव क्लियर ट्यूरिंग टेस्ट, लेकिन आप ट्यूरिंग टेस्ट नहीं पास कर सके आज तक। तो सुपर इंटेलिजेंस जो है ना, वो अकॉर्डिंग टू जो पायनियर्स हैं, पीटर नॉर्विक और ये सब लोग, इनके मुताबिक अभी भी 40 ईयर्स अवे है जो सुपर जनरल इंटेलिजेंस। हाँ, और जहाँ तक बात है ना ये ऑटोमेशन की कि रोबोटिक्स वर्क फोर्स पे किस तरह एक्ट करेगी, तो यार पाकिस्तान में उसका इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज पाकिस्तान में वी पीपल बिलीव कि हम मजदूर रख लेंगे, हम रोबोट नहीं रखेंगे, ठीक है। और हमें मिले भी तो हम नहीं रखेंगे, हमें एक चीज़ ऑटोमेट करके भी मिलेगी ना, कि लेट्स से समवन सेज के मैं आपके घर में होम ऑटोमेशन सिस्टम इंस्टॉल कर देता हूँ, लाइक गूगल होम या एलेक्सा या कुछ तरह करके। हम लोग कहेंगे नहीं, वी कैन उठ आवर सेल्फ, हम खुद अपने आप उठ सकते हैं और जाके खुद लाइट बंद कर लेंगे, हमें एलेक्सा नहीं चाहिए, ठीक है। वी कांट पे फॉर एलेक्सा। तो हम एज अ पाकिस्तानी ना, हमारा भी वो एडॉप्शन कर्व ना तो इतना स्ट्रॉन्ग है, और ना ही हम टेक्नोलॉजी को इतना अच्छा अडेप्ट करते हैं कि हम देखें कि आपके पास 10 साल में चेंज आ रहा है, 20 साल में आ रहा है। नहीं, हम लोग कभी भी अडॉप्ट नहीं करते चीज़ों को। तो पाकिस्तान में तो ये चीज़ बहुत दूर है, पर बाहर के मुल्कों में ना, लाइक इफ़ यू गो टू US, आप सबसे ज़्यादा जो रोबोट्स आ गए ना वो चाइना और जापान में। अगर आप चाइना, जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया कभी जाओ, तो वहाँ पर आपको रियल लाइफ में वेटर कभी नज़र नहीं आएगा, और रेस्टोरेंट वहाँ पे सारे रोबोट्स होते हैं। तो दे सर्व यू फूड, ठीक है ना। और वो लोग चाइना और ये जापान वाली साइड है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं AI पे। दे इवन हैव देयर न्यूज़ कास्टर्स जो कि न्यूज़ पढ़ते हैं, वो भी AI एजेंट्स हैं जो कि आपके लिए खबर पढ़ रहे होते हैं।
चाइना में ना, आपने ये यूट्यूब पे देख लेना, काफ़ी सारी वीडियोस हैं, तो वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें चेंज होंगी, पर पाकिस्तान में भी बहुत दूर है, तो इससे इतना खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है ना, ये खतरे में है। लाइक फ्रंट एंड वाले जो लोग हैं जो कि सिर्फ HTML और CSS लिखते हैं ना, वो थोड़े से खतरे में GPT-3 की वजह से, बिकॉज OpenAI ने बोला है कि हम 2025 तक ना, हाँ, हम 2025 तक आपका पूरा फ्रंट एंड जो है ना वो सिर्फ एक स्पीच या एक टेक्स्ट के थ्रू कर देंगे, ठीक है। और आप क्या करोगे, यू विल जस्ट राइट सम कोड टू क्रिएट अ जनरल ऐप, और हम उसको क्रिएट कर देंगे आपके लिए विद कोड और विद यानी कि UI भी सारा हम बना देंगे और कोड भी सारा हम लिख देंगे, आपने सिर्फ उसको डाउनलोड करना है और आपका सारा काम हो जाएगा। तो फ्रंट एंड डेवलपर्स का थोड़ा सा मसला है। बाकी आप कह सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग वाले खतरे में वो वजह ये है कि आजकल अगर आपको मैं US का बताऊं ना, तो US में ट्रम्प ने जब कैंपेन चलाई थी और अब जब जो बाइडेन ने चलाई है, दे डोंट हायर डिजिटल मार्केटर्स या इन्फ्लुएंसर्स, दे जस्ट यूज चैटबॉट्स। वो चैटबॉट्स इस्तेमाल करते हैं और वो बिल्कुल ह्यूमन कन्वर्सेशन का एक्सपीरियंस देते हैं, वो उनको लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान में है ना, अगर झंडा उठाया और आप चल पड़े गाड़ी में बैठ के पूरी गलियां आपने फिरी, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वो चैटबॉट्स इस्तेमाल करते हैं और वो इस तरह एक्सपीरियंस देते हैं लोगों को, लोग कायल हो जाते हैं वोट देने के लिए सिर्फ एक चैटबॉट के साथ, यानी कि इतने स्ट्रॉन्ग चैटबॉट्स बनाए हैं उन्होंने। तो ट्रम्प की जो थी ना जीतने की वजह भी यही थी उस वक्त के, ही हैज़ मोर चैटबॉट्स दैट हिलरी क्लिंटन और बाकी सबके मुकाबले में ना। तो और व्हाट टेक्नोलॉजीज यू थिंक लाइक बूमिंग राइट नाउ इन नेक्स्ट 2 years? यार ब्लॉकचेन ही है सबसे ज़्यादा अभी तो टॉप पे, और वेब में अगर हम बात करो तो रूबी ऑन रेल्स और गोलैंग और रस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर है। और गेम डेवलपमेंट में कुछ ज़्यादा खास नहीं, गेम डेवलपमेंट बस अनरियल इंजन C++ सीखो और अनरियल इंजन या यूनिटी सीख लो C# के साथ, यू विल बी गुड। पर पाकिस्तान में गेम डेवलपमेंट की इंडस्ट्री भी इतनी इवॉल्व नहीं है। लाइक यहाँ पर 2D गेम्स 3D गेम्स अब आके बनना, 3D तो अब स्टार्ट हुई है ना रियल इंडस्ट्री पाकिस्तान में, पहले नहीं थी। तो कुछ भी करो बस अपनी फील्ड। अब इस तरह मुझसे यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था कि मैंने भी PHP स्टार्ट किया है तो मैं क्या वेब करूँ या ना करूँ। तो यार हमने PHP स्टार्ट किया ना तो करो, कोई वो नहीं है कि नहीं करनी। आप PHP में लारावेल को सीखो, ठीक है। तो लारावेल को सीखो तो आप ऑटोमेटिकली कैच, बिकॉज लारावेल इज द ट्रेंड इन PHP राइट नाउ। आप किसी भी जगह पे जाके जॉब पोस्टिंग पढ़ लो PHP डेवलपर की, वहाँ पे रिक्वायरमेंट सबसे ऊपर लिखा होगा मस्ट हैव 1 year एक्सपीरियंस या मस्ट नो अबाउट लारावेल, ठीक है। बिकॉज ट्रेंड्स इज लारावेल, हर कोई लारावेल पे ही काम करता है आजकल। प्योर PHP तो खत्म हो गई है। और IoT का तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जिस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी ना वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हमेशा मार खाएंगे और खा रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान बिकॉज ये कि इफ़ यू हैव टू बिल्ड अ स्टार्टअप या कंपनी ऑन IoT यू हैव टू मैन्युफैक्चर देम फ्रॉम चाइना। आपको डिज़ाइन चाइना भेजना पड़ता है, लाइक यू हैव टू पे $250 जस्ट टू वो सिर्फ भेजने का और कस्टम्स का। और जब आप उसको वापस लेके आते हो तो लेट्स से अगर कोई चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तान में वही डिवाइस 5,000 की दे रही है ना, आप उसको अपने हिस्से से मैन्युफैक्चर करा के वापस लाकर पाकिस्तान में बेचोगे तो आपको 10,000 रुपये की पड़ेगी बिकॉज ऑफ कस्टम्स, ठीक है। क्लियरेंस बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान में, कोई नहीं सपोर्ट करता है यहाँ पे। तो ये लॉज और रेगुलेशन गवर्नमेंट जब तक चेंज नहीं करेगी पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी आएगी नहीं। तो यही मसला है सबसे बड़ा कि हमारे यहाँ पे बिजनेस का ना। और बाकी क्वेश्चंस आई थिंक जनरली हैं, और तो किसी का कोई नहीं है। एग्जैक्टली साथ बिल्कुल इसी तरह भी आपने बात की ना जिस तरह फ्रंट एंड डेवलपर्स की, तो वो अभी से शुरू है। इवन आप Adobe XD पे जो है लेआउट्स बनाए और वहाँ पे फ्लटर की एक्सटेंशन है, उस पर आपको पूरा फ्लटर का फ्रंट एंड का कोड मिल जाता है। तो मतलब किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप जो है जाके फ्रंट एंड कोड ही करें। इवन सेम विद द फिग्मा, अगर आप इवन वेब के लिए बना रहे हैं लेआउट्स तो आपको बनाया कोड वो खुद ही एक्सपोर्ट करके दे देता है। तो इतना जो है मतलब सीधा एडवांस जा रहे हैं। वो यही है कि टेक्नोलॉजी साथ साथ इवॉल्व हो रही है। हमारा मसला ये है कि हम अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। तो एक ही देखें, मैं हमेशा स्टार्ट से यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर फर्स्ट ईयर में है ना, एक फील्ड डिसाइड कर लें, यही सोच लें कि हमने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इसी में करना है, ठीक है। हमारा क्या होता है कि हमने एक सेमेस्टर में C++ पढ़ी, दूसरे में जावा आ गई, तीसरे में फिर डेटा स्ट्रक्चर C++ में आ गया, फोर्थ में फिर हमने जो है वो पढ़ लिया, क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ लिया। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम किस में काम करें, ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है। टू बी ऑनेस्ट मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो कंप्यूटर नेटवर्क्स में था, ठीक है। आई वुड लव टू गो इन देयर, वो सबसे वास्ट स्कोप है और वो आपको साइबर सिक्योरिटी से भी कनेक्ट करती है इनडायरेक्टली। तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन फॉर सम रीज़न फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने जाना तो है, लेकिन जब मुझे फ्लटर का पता चला, फ्लटर एक दफ़ा मैंने स्टार्ट किया, आई वाज लाइक यार आई एम नो वे गोइंग बैक टू दिस।
आई एम स्ट्रेट गोइंग इनटू फ्लटर और फिर इसके साथ मैं एक्स्ट्रा टेस्टिंग करूँ। तो ये इसी तरह से है। तो आपने अपना जो है पैशन वो खुद ही आइडेंटिफाई करना है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। सो एक दो लोगों के क्वेश्चन है, एक है वेब के बारे में, आई थिंक विविक दूसेजा। तो वेब इज यार, वेब में ना कुछ है स्कोप। यार स्कोप बंदे का होता है, स्कोप फील्ड का नहीं होता है। मैं बता के थक गया हूँ, पता नहीं कितनी दफा मैंने ये बात बताई है। स्कोप फील्ड का नहीं होता, स्कोप बंदे का होता है। आप इन इटसेल्फ एक खुद स्कोप हो। अगर आप एक गोल एंड डेवलपर हो तो आप खुद स्कोप हो पूरे पाकिस्तान सबसे बड़ा, ठीक है। वेब स्कोप नहीं, आप स्कोप हो। और 4 लाख भी लोग लेते हैं। मेरा दोस्त है वो ROR में 4.5 लाख ले रहा है एक मंथ का। तो स्कोप की तो बात है ही नहीं। आप जो भी चीज़ सीखते हो वेब में वो एक स्कोप बन जाती है, बिकॉज आजकल वेब की डिमांड सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में चलता ही वेब है। जिसे मर्जी पूछ लो, हर कंपनी बेशक वो मशीन लर्निंग पे काम करती है पर वेब पे लाजमी करेगी। ऐसा कभी आप नहीं देखोगे कंपनी सिर्फ मशीन लर्निंग पे काम करती बाकी वो कुछ नहीं करती। यार मशीन लर्निंग के भी सोल्यूशन जब निकल के जाते हैं तो वो क्लाइंट के पास किसी वेब एप्लीकेशन में या मोबाइल ऐप में जाएंगे ना, तो अब जो वेब एप्लीकेशन है वो मशीन लर्निंग इंजीनियर तो डिजाइन करेगा बैठ के, वो तो वेब डेवलपर ही करेगा, ठीक है। मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम सिर्फ मॉडल ट्रेन करना है, ठीक है। ट्रेन करके आपको दे दिया, आप उसको डिप्लॉय करना डेवऑप्स वाले का काम है, क्लाउड वाले का काम है। वेब डेवलपर तो वेब डेवलपर ही देगा, उसने फ्रंट एंड डिजाइन किया, उसने एपीआईज को कनेक्ट किया और सारा कुछ काम। तो ये चीज़ तो कभी खत्म होगी ही नहीं, तो टाइम के साथ और इंक्रीज होगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इफ़ यू लर्न रिएक्ट यानी कि मर्न स्टैक तो 80,000, अगर आप ROR करोगे तो जावा करोगे तो 1 लाख, ROR करोगे तो 1.5 लाख, ठीक है। डिपेंड्स ऑन कि कंपनीज कितना पे करती हैं। तो ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। और बाकी अच्छा। इसके अलावा और डेटा साइंस पे किसने पूछा था? आई थिंक रस्ट के काफ़ी सवाल है और IoT के, तो मैं उस पर एक बड़ा कमेंट करना चाहता हूँ क्योंकि रस्ट एक ऐसी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, इसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रस्ट और एक दूसरी गोलैंग, जैसे साद ने बताया। मैं आपको मज़े की चीज़ स्टोरीज बताता हूँ कि देखें आप एक टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं तो आप इसको इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं। अब लेट्स से IoT की बात करते हैं तो देखें IoT डिवाइसेस ज़्यादातर क्या होती हैं, एक बहुत माइक्रो प्रोसेसर होगा। मतलब अब एक कंप्यूटर में तो कितने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर चल रहा होता है, लेकिन अगर एक स्मॉल माइक्रो डिवाइस की बात करें तो वो तो बिल्कुल उसमें ना बहुत ज़्यादा रैम होती है ना कुछ होता है, चंद हल्की सी मेमोरी होती है और उस पर आपने एक डेडिकेटेड टास्क करवाना होता है, ऐसा ही है राइट। अब आप देखेंगे कोई ऐसी लैंग्वेज, बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि वो सर्विस जो आपने उस छोटी सी डिवाइस में यूज़ करनी है उसको स्केल कर सके, मतलब उसको बहुत कन्वीनियंटली आप एम्बेड कर सके। तो उसमें बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो मार खा जाती हैं और स्पेशली Node.js उसमें, ठीक है। तो अब उसमें रस्ट एक ऐसी इवॉल्विंग लैंग्वेज है, ठीक है, कि जो बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे सर्विसेज को ना बड़े हैवी तरीके से स्केल कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसका बंडल बहुत लो है, उसका फाइल साइज बहुत कम बनता है, उसका मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू एनी अदर टिपिकल लैंग्वेज। और वैसे ना वो IoT में वो बहुत एक बूम करी है लैंग्वेज, ठीक है। और अब मैं इसके आपके मजे की चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि Next.js अगर किसी ने सुना हो, जैसे ठीक है वो एक रिएक्ट के टॉप पे बना हुआ एक से एडवांस फ्रेमवर्क आ गया। आप देखिए Next.js में ना एक बड़ा प्रॉब्लम था, जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं ना तो आपको अराउंड 2 से 3 सेकंड में हॉट रीलोड होता था। मतलब आप जैसे ही कोई कोड में अपडेट करते हैं ना तो 2 से 3 सेकंड लगते थे रिफ्लेक्ट होने में चेंज को, ठीक है। Next.js वालों ने अब देखिए Next.js क्या जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। JS से पता लग रहा है वो जावास्क्रिप्ट है, कंपाइलर भी जावास्क्रिप्ट वगैरह में था एंड व्हाट नॉट। Next.js की भी रिसेंटली एनिवर्सरी हुई एंड व्हाट दे डिड के उन्होंने अपना कंपाइलर है ना जो बेसिकली कोड वगैरह जावास्क्रिप्ट में है, लेकिन जो कंपाइल होता है ना कोड वो हो गया रस्ट में। उससे क्या हुआ कि उन्होंने 10 टाइम्स अपना कंपाइल टाइम को फास्ट कर दिया और अपने प्रोडक्शन बिल्ड को 10 टाइम्स एडवांस कर दिया। तो मतलब कि इस लैंग्वेज को लोग जरूर देखें, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि एक बार जाके देखें और क्यों ये लैंग्वेज एक नेक्स्ट बूम है। अभी भी ये मेन स्ट्रीम में नहीं आई, इसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा ऐसी बात में बहुत तेज़ी से बिल्ड हो रही है और बड़े बड़ी जो टेक है रस्ट को अडॉप्ट करें। तो IoT के लिए भी स्पेशली बहुत रिकमेंडेड लैंग्वेज है, और वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल पे ना आपका कोड मतलब बहुत बेसिक, अगर आपके पास चिप है तो उस पर भी इसका कोड बहुत अच्छे से स्केल कर जाता है, ठीक है। So that's और about मजे it. की बात एक और चीज़ है रस्ट में कि नासा का जो रोवर अभी गया है मार्स पे, वो वहाँ पे भी रस्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल Yes, हुई है। उसके exactly. बाद जो जेम्स वेब टेलीस्कोप अब नासा भेजने वाला है, जेम्स वेब टेलीस्कोप का पूरा सिस्टम रस्ट में लिखा गया है पूरा। मतलब उन्होंने C++ से बिल्कुल उठा के रस्ट में कर दिया हर चीज़। और एक और चीज़ है, पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है सुपार्को, ठीक है, पाकिस्तान की भी अपनी एक स्पेस एजेंसी है। उन लोगों ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था लास्ट ईयर कि वी विल बी हायरिंग रस्ट इंजीनियर्स फ्रॉम नाउ ऑन। C++ लोग हम नहीं रखेंगे, हम अब सैटेलाइट का सारा सिस्टम रस्ट पे लेके जाने वाले हैं। तो हार्डवेयर में रस्ट इज़ दी
नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन जो अगले 4 साल 5 साल में आप देखोगे। That's true. Exactly. और even Golang भी पता नहीं, I think I met someone GDC पिशावर का एक सेशन था, उसमें I met someone, he was talking about Golang। तो Golang का even काफी लोगों को पता भी नहीं है Golang एग्जिस्ट करती है। तो Golang का बहुत स्कोप है मार्केट में, तो अगर आप Golang की तरफ जाएं तो उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। And yeah, Ahmed, you have the icon as usual। So yeah, I think बस let's wind it up। मैं बस लास्ट में क्विकली एक सबसे ना पॉइंट लेना चाहूंगा जो आप ऑडियंस के लिए छोड़ना चाहेंगे, सारे के सारे स्टार्टिंग फ्रॉम साद। क्या मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? So the message is कि just be yourself, स्कोप के पीछे नहीं भागना, अपने आप को ब्रांड बनाना है, बस यही एक मैसेज है। बिकॉज मैं खुद भी 4th सेमेस्टर में हूँ, लाइक 2nd ईयर में हूँ, सो आई एम डूइंग दो जॉब्स और साथ पढ़ाई भी और साथ मेंटोरिंग भी, साथ पढ़ाना भी। सो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ बात होती है मेंटल टफनेस की और आपके अपने ऊपर यकीन की। और स्कोप कभी किसी चीज़ का नहीं होता अगर आप खुद घबरा जाओगे, स्कोप हमेशा उसका होता है जब आपने खुद उस फील्ड को डेवलप किया। तो फ़ायदा और मज़ा भी इंसान को तभी आता है जब आप कहते हो कि मैं अकेला ही इस कंपनी में हूँ और मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ। जिस तरह मेरी कंपनी में मैं जब गया था एज एन इंटर्न, वहाँ सिर्फ मैं अकेला डेटा इंजीनियर था और साथ एक इंटर्न था, दूसरा मुस्तफा मेरे साथ था। तो हम दोनों ने मिल के, लाइक ही कम्स फ्रॉम अ बैकएंड, वो बैकएंड से आया था, बैकएंड इंजीनियर, मैं डेटा वाली साइड से था। तो हम दोनों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जो कि विजुअलाइजिंग और रिपोर्टिंग टूल था फॉर द मार्केटिंग टीम, जो मार्केटिंग के 4-5 लोग थे कंपनी के पास। सो वी बिल्ड, हमें 6 मंथ की टाइमलाइन दी गई थी, हमने उसको 3.5 हफ्ते में बनाया था। और दैट कलेक्ट्स डेटा सोर्स फ्रॉम 6 सोर्सेज अक्रॉस द इंटरनेट, और सबको एक जगह पर आके उसको स्टोर करके उसको प्री प्रोसेस करके उसको सेंड करता था पावर BI में फॉर डैशबोर्ड्स ना। तो ये थिंग है कि इफ़ यू कैन लर्न, लाइक मैंने डेटा इंजीनियरिंग खुद सीखी है 1 मंथ के अंदर अंदर सारी की सारी। मैंने बैकएंड सीखा 2 मंथ के अंदर पूरे का पूरा, और मुझे बैकएंड में इंटर्नशिप मिली, मैं वहीं पे फुल टाइम काम कर रहा हूँ। तो द थिंग इज़ के ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से हो, क्या आपका GPA। मुझसे आज तक कभी किसी ने मेरा GPA नहीं पूछा, नेवर। मैंने बाहर की कंपनी के लिए काम किया, अभी भी कर रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया, मुझसे कभी किसी ने आज तक मेरा GPA नहीं पूछा। तो ये बस कहना चाह रहा हूँ कि लोग इस ध्यान में ना 4 साल गुजार देते हैं कि मेरा GPA 3.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए, और वो उस चक्कर में कुछ करते भी नहीं है। जब 3.9 लेके फिर आप बैठे होते हो और आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो लोगों को सिस्टम डिज़ाइन का पता नहीं होता कि सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है। भाई हम तो पढ़ा ही नहीं कभी, ये तो मैं पढ़ाया ही नहीं था। तो मैं नहीं चाहता कि कल को आप भी उन लोगों में बैठो, तो यू कैन जस्ट लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लोग पैसे के नाम पे बड़ा बड़ा रखा लगा जाते हैं, बहुत चुनना है पाकिस्तान में। तो 20-20 हज़ार के कोर्स सिखाते हैं, कुछ भी नहीं है। मैंने खुद एक जगह से 10 हज़ार का किया था, मुझे आज तक याद है। जस्ट गिवन मी, उन्होंने यूडेमी से वो कोर्स डाउनलोड किया था, मुझे वो बाद में पता चला, और उन्होंने मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए कि आप भी दे दो। मैंने कहा यार ये तो मैं फ्री में कर सकता था कहीं से भी जाके, लाइक यू नो। तो इसीलिए वो एक आखिरी गलती थी जो मैंने की थी उस वक्त। तब मैं वैसे मैट्रिक में था, पता नहीं था, तो तब कर ली। उसके बाद आज तक कभी नहीं किया। मैंने खुद लोगों को सिखाया, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एरा डेटा में डेटा साइंटिस्ट हैं, डेव सिंक में काम करते हैं, RB सॉफ्ट में हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है। तो लाइक जब वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। तो ये बस मैसेज है। एग्जैक्टली, बिल्कुल साथ इसी तरह है यार। हमने खुद भी मतलब किया, मैंने काफ़ी ज़्यादा इवन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को ट्रेन किया है पेशावर में। इवन वेब डेवलपमेंट बैकएंड पे मैंने काम करवाया काफ़ी लोगों को। तो मतलब वही बात होती है ना आजकल। तो मेरे पास एक अभी मेरा एक दोस्त है, तो वो आया था कि यार मैंने अपने भाई को क्या जो है भेजना है एक सॉफ्टवेयर हाउस, तो वो कोई 35,000 मांग रहे हैं 2 महीने का, उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखानी है। ठीक है, आई वाज लाइक, ये मैंने उसे किया, मैंने कहा यार यूट्यूब है, इमरान डिज़ाइनर को पकड़ो, एंड अगर इसने 2-3 महीने में डिज़ाइनिंग नहीं सीखी तो आप मुझे आके गिला करो कि यार आप, उससे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। तो मैंने कहा आजकल सॉफ्टवेयर हाउसेस मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा जब मैं सीख रहा था तो मेरे साथ एक सॉफ्टवेयर हाउस था, एंड जहाँ से मैंने सीखा था दे वर चार्जिंग 7,000 फॉर 6 months। ठीक है, एंड 7 सॉफ्टवेयर हाउस से दे वर चार्जिंग लाइक 30,000 उस टाइम पे, 2016 की बात है, फॉर 2 months। और मैंने वहाँ पे अल्टीमेटली 1 साल गुजारा उस सॉफ्टवेयर हाउस में। तो बात वही पे आ जाती है ना कि सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें। इवन मुझे सेल्फ लर्निंग का तब रियलाइज़ हुआ जब कोविड स्टार्ट हुआ, जब मैंने खुद बैठ के सर्चिंग करना स्टार्ट की, कोर्सेरा खोलो, ये सर्च करो, वो सर्च करो, और रिसर्च से ही सारी चीज़ें आती हैं। तो आप जितना रिसर्च कर सकते हैं
तो करें। इवन मैंने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश की, ठीक है, जो कि बैचलर लेवल पे बहुत बड़ी बात होती है कि आप रिसर्च पेपर पब्लिश करें। वो अल्टीमेटली रीजन यही थे कि बैक एंड पे मैं रिसर्च कर रहा था, चीज़ें देखना, रिसर्च पेपर्स निकालना, गूगल स्कॉलर खोलो, अच्छा कोई भी इनोवेशन लानी है गूगल स्कॉलर खोलो, इस बंदे ने इस प्रोजेक्ट पे क्या काम किया हुआ है, मैं इसको प्लस किस तरह कर सकता हूँ, ये चीज़ें होती थी, तो इस तरह से काम होता था। तो बस आई थिंक डिस्कशन काफ़ी लेंथी हो रही है। कुमैल, लास्ट एंडिंग नोट फॉर द ऑडियंस, देन फातिमा और फिर इकरा, एंड मे बी अहमद कैन शेयर समथिंग एज वेल। हाँ, सो या मैं बस अब आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मार्केट में क्या चीज़ नहीं आई है और किसका आगे स्कोप होगा। तो वी कैन ऑलवेज फाइंड एंड रिसर्च कि किसका स्कोप है और आप वहाँ पे बिट कर जाएं, ठीक है, ये बड़ा आसान है। लेकिन मार्केट में स्कोप बनाना ये बहुत मुश्किल है। तो एक चीज़ जिसका मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ वो यही है कि आप स्कोप बनाने वाले बने, लोग आपकी मार्केट में आएंगे जब लोगों को समझ में आएगा कि आपने एक चीज़ डेवलप की है और वो वाकई एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है। तो स्कोप के पीछे बहुत लोग भाग जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप स्कोप बना के चले जाएंगे तो क्या पता आपके मरने के बाद भी आपको सदका जारिया मिलता रहे। तो ज़ाहिर है सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागने के लिए तो हमें ताला ने थोड़ी भेजा है, दुनिया में कुछ तब्दीली लाने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए भी अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। तो हमें अपने दीनी और दुनियावी दोनों मकसद को जहन में रखना चाहिए। और एंड ऑफ द डे यू कैन ऑलवेज अर्न मनी वंस यू आर स्किलफुल इन समथिंग। आप उस पर टाइम लगाएं तो you will always get people who want to hire you, in that regard. You can always create your own market, you can always create your own room, ठीक है। पहले दफ़ा फेसबुक भी जब ज़करबर्ग ने जब दोस्तों साथ मिल के बनाया तो ठीक है, तो उस टाइम वो क्या था, लेकिन जब उसको समझ में आया उसकी मार्केट कहाँ तक है, जो लोग उसके पीछे आ रहे हैं, उस पर फीडबैक मिल रहा है, तो वो कहाँ चला गया। और आज आप देखें फेसबुक का मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट फेसबुक भी नहीं रहा, अब उनकी कंपनी मेटा के नाम से हो गई है, तो उनके मेन स्ट्रीम चेंज हो रही है। अब लोग अब कितने लोग हैं जो मेटावर्स की टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, कि अब फेसबुक ने कह दिया तो वो बेसिकली मार्केट इनोवेटर्स हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो अगर फेसबुक ने कह दिया तो जी हम इस बग्गी पे जंप करना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट समथिंग ऑफ योर ओन, ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मतलब ये जो बड़ी कंपनीज है ना, मतलब फॉर एग्जांपल गूगल, एप्पल, AWS, इवन फेसबुक, इवन टेस्ला, ये इतनी बड़ी टॉप 5 कंपनीज क्यों हैं? क्योंकि इनका जितना पैसा कमा रहे हैं, जो आप देखते हैं मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनीज हैं, इनका मेजॉरिटी ऑफ द पैसा है वो R&D में लग रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लग रहा है, सो दैट दे आर अहेड, दे आर द इनोवेटर्स। दुनिया इनकी तरफ मुड़ के देखे जब भी कोई नई चीज आ रही है, तो उनका जो मेजॉरिटी, जो उनका चंक ऑफ जो पैसा है ना, तो आप सोचते हैं ना कि इतना पैसा आ गया इनके पास, ऐसा नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा पैसा जो आपको दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा वो उस पर लगा रहे हैं टू मेक श्योर दैट दे आर द मार्केट लीडर्स। तो व्हाई नॉट यू गाइस? इन सब ने बिल्कुल जीरो स्टार्ट किए थे, ये जितनी भी कंपनीज हैं इन सब के स्टार्टअप्स या गिराज से हैं या बिल्कुल एक घर से हैं, एक इंडिविजुअल से हैं, ठीक है। शुरू में इनको बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं मिल गए थे, तो आपने इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है और हिसाब से ये भी देखना है कि ठीक है आप चीज़ें सीखें, टेक्नोलॉजी को समझें, फिर आप देखें कि आप कहाँ पे एक अपना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को जहन में रखें। बाकी लोग आपके पीछे आएंगे जब आप ये सारा कुछ करेंगे, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, लोग आपको हायर करना चाहेंगे, लोग आपके साथ हमेशा ये आपके साथ रहेंगे कि जी आपके साथ हमने काम करना है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग फ्रॉम माई साइड। थैंक्स अ लॉट। Yeah, one last ending note, Fatma. Yes, thank you so much, Fawad. First of all, inviting me here, like after so long, actually. लेकिन in the end, I would say कि start joining communities. कोई भी opportunity मिले, like communities join करने की, societies join करने के लिए, like go ahead and just be there. आपको फिर रियलाइज होगा कि आप कितने नेटवर्क्स बनाते हो, आप किन किन लोगों से मिलते हो जो आपसे हेड ऑफ टाइम है लिटरली, लाइक, और आप उनसे सीखोगे, आप उनके साथ आगे बढ़ोगे। एंड नेटवर्किंग आपको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी डेफिनेटली वहाँ पे आपको पता चलता जाएगा कि कौन बंदा किस चीज़ में ज़्यादा आगे है और कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। जैसे गूगल फोकस्ड है तो हम GDSC ज्वाइन करें, दूसरों को भी ज्वाइन करवाएं, लाइक यू गाइस कैन गेट अ लॉट बेनिफिट्स फ्रॉम देयर। और जब हम बात कर रहे थे मेटावर्स की, सो आई वाज लाइक recently I have been watching Yar Ramesh a lot, like उनकी NFT series के ऊपर I'm really into NFTs because like Prinza Momin हमारी like ex fellow हमारे पास former DSC lead थी हमारी, तो she is now into NFTs as well, so I've been following up a lot on her blockchain के ऊपर। फिर बाद में पता चलता जाता है a lot about them। Metaverse के ऊपर भी he is making a YouTube series, so you guys just
research him about everything he's making NFTs or blockchain के ऊपर भी like वो थोड़ा दे रहा है and then थोड़े बहुत ideas दे रहा है and then he's now starting a series about metaverse as well. So a lot of people wouldn't relate to these topics. So you guys can just go on exploring these famous YouTubers. जो जिनको स्निकर्स बहुत पसंद है, कराची के फेमस ब्लॉगर्स हैं. So you guys can check him out if you want. And yeah, that's it. Thank you. Also, I would like to say one more thing for one, that दुनिया आपको बहुत कुछ बताएगी कि आप ये करें वो करें, इधर जाएं, इस साइड पे जाएं, उस साइड पे जाएं, but do what you love and love what you do, because that's the ultimate goal. If you don't love what you do, then it's going to be a burden on you, and we don't want that. So what this whole thing has taught me with GDSC family and all this, because I have seen a lot of people with different interests and they are into so many things. And अगर मेरी अपनी बात करें तो मैं भी like I started from the very beginning, and I jumped a lot of technologies, and at the end I just ended up with Flutter, and now I absolutely love Flutter, and I'm sure that Ahmed is gonna back me up on this. Ahmed, how do you love Flutter? I love so much. इससे पहले मैं जो भी एंड्रॉइड में काम करना स्टार्ट किया था मैंने, तो I was like ये बहुत अजीब सा कॉम्प्लेक्स सा Yeah, exactly. Then I move on to Flutter. Yeah, So I worked it's on Kotlin amazing. too, but Yeah. Flutter is so much better. So I will also back you up on love what you do. तो how to explore what you love. तो इसके लिए आप ये करें कि just go through the communities और लोगों से मिलें, और जब आपको नई चीज़ों का पता चलेगा तो explore them for a week or even a month, और उसके बाद अगर आपको अच्छी लगती है learn it, और Exactly. then you will know कि आपका क्या passion है और क्या क्या है. Yeah, and you don't have to stick with one thing. You can do multiple things. जैसे कि कुमैल हमें बता रहे थे इस टाइम पे कि हमारी ये बहुत vast field है and we can switch anytime we want. So why not? If you have learned something and you don't like it, or if there are any problems that you don't want to go through with it, so just change it. Just do what you love, because this field is so vast and you can do so many things with it. So why not just go for the things that you love and are interested in doing? And in the meanwhile, if you guys are learning something और आपको लगता है कि यार वो बंदा मुझे ये कह रहा है कि that thing is the more interesting, तो आप अभी एक दफा जो सीख रहे हैं उसको सीखते रहें, then move on to that. Exactly. लोग दरमियान में से छोड़ देते हैं और नई चीज पकड़ लेते हैं. That's what happened to me earlier. Yeah, see something through, because if you don't do that, you'll never know about it, because you'll never know how much you could do it. What was your potential in that particular thing? Exactly, बिल्कुल इसी तरह है. तो I just wanted to add something. बस ये है ना वो कि पर्सनल ब्रांडिंग, जिस तरह कमाल ने बात की, साथ ने बात की, फील्ड का कभी भी स्कोप नहीं होता. ये हमारे मेंटर्स भी हमें बताते रहे हैं कि कभी भी किसी फील्ड का स्कोप नहीं होता. स्कोप आपने अपना खुद बनाना होता है. सो पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करें, अपनी वेबसाइट बनाएं. आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट होनी चाहिए. आई वुड रादर से कि आजकल के टाइम में आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, रेज्यूमे से ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है. कोई भी बंदा आता तो आपकी प्रोफाइल चेक कर सकता है इजीली. अच्छा, आप इस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, आपकी ये एक्सपर्टीज है, तो अगेन पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करें. एंड आई एम श्योर कि अहमद वुड बैक मी अप ऑन दिस कि पर्सनल ब्रांडिंग कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है. या एग्जैक्टली. आप जो भी हैं, आप अपने आप को मार्केट करें, और आप क्या हैं बेसिकली, आप क्या किस टेक्नोलॉजी में, इवन अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी में नहीं है, यू आर जस्ट लाइक कोई मार्केटर हैं, आप फोटोग्राफर हैं, आप कुछ भी हैं, जस्ट मार्केट योरसेल्फ. और आप कोई प्रोफाइल बनाएं, कोई वेबसाइट हो आपकी where people can see your work actually. Yeah, and if you don't have a website, if you can't afford it or anything like that, then at least अपनी GitHub, अपनी LinkedIn, अपने social media accounts, make them something to look at, because that's what people are gonna judge you for. कुछ ऐड करना हो IoT वगैरह के बारे में लोग पूछ रहे थे. आई थिंक वो आंसर नहीं हुआ था. आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट, बट आई थिंक वो मिस आउट हो गया था. I'd say बहुत सारी कंपनीज yes अब बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं IoT में within Pakistan as well. I know a friend of mine एक बड़ी reputed कंपनी में अब है, Cornered Labs के नाम से. तो उनका ज़्यादातर प्रोडक्ट्स IoT के हैं. और I'd say honestly IoT में अगर आप काम करना चाहते हैं
तो आप देख सकते हैं कि आपकी डेली रूटीन में कितने प्रोडक्ट्स हैं कि जो लोगों को चाहिए, और वो शायद मेन स्ट्रीम में पाकिस्तान में स्पेशली नहीं बिक रहे, मे बी यूएस में बिक रहे हो, तो आप अपनी मार्केट मुल्क में क्रिएट कर सकते हैं। तो IoT का स्कोप एंड सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योरियल करियर इट्स वेरी गुड। आई थिंक बहुत ज़्यादा उसका पोटेंशियल है। और कंपनीज, यस, बहुत सारी कंपनीज अब काम कर रही हैं। पैना क्लाउड, PIIC का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनको बहुत IoT डेवलपर्स चाहिए, वो अब सिलिकॉन वैली में भी काम करें। तो एक वो ऐसी कंपनी जिनको मैं क्लोजली जानता हूँ। फिर कॉर्नर लैब्स मैंने आपको बता दिया, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो IoT पे काम कर रही हैं। तो यू कैन ऑलवेज स्कोप इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा है और ये बूम करेगा। ठीक है, अभी ये है कि क्योंकि स्टार्टअप्स जैसे फर्स्ट करें, जो मेन स्ट्रीम स्टार्टअप्स हैं जिसमें एयरलिफ्ट, बाजार, दुकान, इस तरह के नाम आ गए, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा स्केल कर रहे हैं तो इनको ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए। लेकिन जैसे फर्स्ट करें कोई IoT का कोई स्टार्टअप इन इटसेल्फ तेज़ी से स्केल करने लगे, या कोई इसका एक बूम आ रहा है, तो आपको अभी देखिएगा अगले 1 साल में आपको IoT के बहुत स्टार्टअप्स मिलेंगे। तो I'd say फोकस ऑन कि आप एक अच्छा IoT डेवलपर बने फॉर नाउ, एंड आपको पाकिस्तान तो क्या, आपको बाहर रिमोटली लोग इतना हायर कर लेंगे फॉर IoT डेवलपमेंट, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना। द मेन फोकस इज टू लर्न समथिंग एंड बी वेरी गुड एट इट। ठीक है, तो फिर इन टर्म्स ऑफ स्कोप एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड, ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Yeah, exactly. बिल्कुल इसी तरह। I think we should wind it up. Firstly, thank you so much Ikra for joining in. Thank you so much Kumail आपके टाइम के लिए. Thank you so much Fatma. Thank you so much Saad. For sharing your expertise with the audience.